Good morning everyone and welcome to the class. We are doing second chapter in history from hunting, gathering to growing food. And in this chapter we have discussed about the hunter and gatherers. The period of hunter and gatherer is known as Paleolithic period, which started around 20 lakh years ago and ended around 12,000 years ago. And then we have seen that 12,000 years ago to 10,000 years ago, from 12,000 years ago to 10,000 years ago, there was change in the environment of the earth, and this period is known as Mesolithic period, which means Middle Stone Age. During this 2000 years period, we see that there was change in the climate, in the environment of the earth. The earth started to be warm, and with this we see that the human lives also changes. We see that the hunters and gatherers starts to be the herders and the farmers. The people, the hunter and gatherers, now started domesticating animals as well as plants, and in this way the hunter gatherers becomes the farmer and the herder. And then around 10,000 years ago, Neolithic period starts, which means New Stone Age. In this New Stone Age, people started to be hunters, started to be farmers and herders. And one more thing is there in all these three periods: the Neolithic, the Paleolithic, Old Stone Age, the Mesolithic, Middle Stone Age, and the Neolithic, the New Stone Age. In all these three periods, we find that people used to make tools of stone. That is the tools were mostly made of stone. Other than stone, tools were also made of bones and wood, but most of the tools were made of stones. And when we see the Paleolithic period or the Old Stone Age, in that age the stone tools were bigger in size. Then comes the Mesolithic period. In the Mesolithic period, the size of the stone tools was very small. These were called microliths. बहुत ही छोटे छोटे स्टोन टूल्स बनते थे और उनमें हैंडल लगे होते थे, बोन्स के, वुड के, and these stone tools were known as microliths. And then comes the Neolithic period. In Neolithic period also the tools were made of stone only, but in Neolithic period we see that the tools were polished. उनको पॉलिश कर दिया जाता था, and because of this polishing their cutting edge was sharp. उनका जो कटिंग एज होता था, काटने वाला जो किनारा होता था, वो बहुत ही शार्प होता था. तो ये बेसिक फीचर्स है तीनों पीरियड के, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. एंड नाउ टुडे we will be discussing about the Neolithic period. We have seen that the hunters and gatherers are now the herders and the farmers, and with this we see that so many changes have taken place in their life, that they started to live a settled life. Now they are not living in caves or in rock shelters. Instead, they are living at they started to live in huts and houses, because now it was not possible for a human being, it was not possible for farmers and herders to move from one place to another every now and then. Now they need to live a
settled life, because now they are farmers. They are growing different plants, and in order to grow those plants they require to live at a place for a longer time. So in this way their settled life started, है ना. They started to make huts. Okay, and we have also discussed some of the important Neolithic sites in India, which is given in your map on page number 13, which with blue squares. The places which are denoted by blue square denotes that Neolithic sites like Burjaham, Halur, Payampalli, Medgar, Koldehwa, Mahagara, Chirand, Dawsali, Harding, all these are Neolithic sites in the Indian subcontinent. So in this way we can see that people started a settled life. Okay, and now we will have a closer look how people lived in Medgar, living and dying in Medgar. कैसे लोग क्या क्या करते थे अपनी लाइफ में, और जब उनकी डेथ हो जाती थी तब क्या होता था. सो नाउ वी विल सी अबाउट मेढ़गढ़. ओके, अगर मेढ़गढ़ को आप अपने जो मैप हमारा दिया हुआ है पेज नंबर 13 में, अगर उसको आप देखेंगे तो मेढ़गढ़ जो है वो आज के समय में पाकिस्तान में है. वो इट्स नॉट इन इंडिया. ठीक है, और पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान अगर हम इंडिया का जो वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है ना, वेस्टर्न जो साइड है इंडिया का वहाँ पाकिस्तान है. इसके पाकिस्तान के बगल में कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान ऊपर में, और नीचे में ईरान. ऊपर में अफगानिस्तान है, नीचे में ईरान है, और ये पाकिस्तान है. तो जिस मेढ़गढ़ की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे एक पास है. पास मतलब एक पतली सी जो संकरी जो रास्ता है ना, उसी को पास कहते हैं. जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में सकड़ा सा नैरो एक लाइन रास्ता होता है जिससे हम एक पार से दूसरे पार जा सकते हैं. अदरवाइज हमको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, बहुत लेंदी रूट होगा. लेकिन अगर हम उस पास से जाते हैं तो वो हमको काफी नजदीक पड़ेगा. तो ऐसे ही एक पास है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे, जिसका नाम है बोलन पास. तो ये जो बोलन पास है यहीं पर हमको मेढ़गढ़ नजर आता है ना. मेढ़गढ़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है. यहाँ पर पीपल वेर फार्मर्स एंड पीपल यूज टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट. इन मेढ़गढ़ पीपल क्या ग्रो करते थे? बार्ली और व्हीट ग्रो करते थे. एंड जो एनिमल्स जिनको वो रेयर करते थे, जिनको वो पालते थे, वो कौन से एनिमल्स थे? वो थे शीप एंड गोट. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो क्रॉप्स वो ग्रो करते थे दैट वाज व्हीट एंड बार्ली. और जो एनिमल्स को वो रेयर करते थे वो कौन से एनिमल्स थे? वो थे दिस शीप एंड गोट. ठीक है, तो ये जो हम ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज में आता है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. ठीक है, और यहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं, लाइक डियर है, पिग है, जो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने
जब इस प्लेस पर एक्सकवेशन किया, खुदाई की, तो उन्हें वाइल्ड एनिमल्स जैसे डियर और पिग के भी बोन्स मिले और साथ ही साथ शिप और गोट के भी बोन मिले। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम मेडगर में देखें कि एक्सकवेशन में क्या क्या मिला, तो उसमें हमें जो घर के जो रिमेन्स मिले हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हाउस, दोनों तरह के हाउस होते थे। स्क्वायर भी हाउस होते थे और रेक्टेंगुलर हाउस भी होते थे। और ज़्यादातर हाउस में 4 कंपार्टमेंट्स, जिसको हम रूम्स कहते हैं, 4 पार्ट में बटा हुआ घर हमें दिखाई देता है। ठीक है। कहीं कहीं 4 से ज़्यादा भी कंपार्टमेंट्स थे और कभी कभी जो कंपार्टमेंट्स थे जो अलग अलग, उनको स्टोरेज की तरह भी यूज़ किया जाता था। ठीक है। और जब यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो थे वो उनको डेथ के बाद रिस्पेक्ट पे करते थे, है ना। और लोग उनकी देखभाल भी करते थे डेथ के बाद, क्योंकि उनको ये बिलीव था कि डेथ के बाद भी किसी न किसी फॉर्म में लाइफ होता है, तभी तो वो उनकी देखभाल करते थे। और इसलिए ब्यूरियल किया जाता था। ब्यूरियल में हम देखते हैं कि जो डेड पर्सन है उनके साथ बहुत सारी चीज़ें बरी की जाती थी। एक ऐसा भी ब्यूरियल साइट मिला है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंसान जिसकी डेथ हो जाती है उसके साथ गोट को भी बरी कर दिया जाता है, जो कि ऐसा माना गया था कि मतलब गोट जो है वो उनके फूड के लिए यूज आए। जिस दूसरी दुनिया में अब वो चले गए हैं वहाँ पे भी उनको खाने की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर वो उनके खाने के काम आए। इस हिसाब से हमें कुछ ऐसे भी ब्यूरियल्स मिले हैं। तो ये हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब एज आई टोल्ड यू, एंड एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर यू विल फाइंड एल्सवेयर। ठीक है। तो इस चैप्टर के एंड में भी हमें एल्सवेयर मिल रहा है, जिसमें कि हम देखेंगे किस बारे में दिया है। और इसमें दिया है केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। फ्रांस में जो केव पेंटिंग था होता था उसके बारे में यहाँ पे एल्सवेयर में दिया है। Elsewhere. Cave paintings in France. ओके। अगर आप फ्रांस को अपने वर्ल्ड मैप में खोजेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप। फ्रांस जो है वो यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। और इसका शेप कैसा है? इसका शेप पेंटागन की तरह है। ठीक है। तो आप अपने एटलस में इसको ज़रूर खोजिएगा, ये कहाँ पर है। तो जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग, काफ़ी वाइब्रेंट सा पेंटिंग एक बना हुआ है, जिसमें हमें बाइसन नज़र आ रहा है। ठीक है। ये जो पेंटिंग है वो एक फ्रांस के केव से लिया हुआ पेंटिंग है। केव में ये पेंटिंग बनी हुई थी, है ना। और ये जो साइट है इसकी डिस्कवरी जो हुई वो कैसे हुई? स्कूल के बच्चों ने इस साइट को खोजा था, आज से करीब करीब 100 साल पहले, 100 years ago. Okay, this site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. ठीक है। और इस तरह के जो पेंटिंग्स हमें दिख रहे हैं जिसमें 2 बाइसन हमें नजर आ रहे हैं, इस तरह के पेंटिंग्स आज से 20,000 से 10,000 साल पहले बनाए गए थे। यानी कि वही पीरियड है जिसको कि हम इंडिया में अभी हमने जिसको डिस्कस किया, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है। तो ये पेंटिंग्स कब बनाए गए थे? दीज पेंटिंग्स
were made between 20,000 and 10,000 years ago. Between 20,000 and 10,000 years ago. ठीक है, तो ये वही समय है, क्योंकि हमने देखा था ना, हमने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 12,000 साल पहले वाला जो टाइम है, दैट वाज पैलियोलिथिक. तो दिस पीरियड आल्सो बिलोंग टू पैलियोलिथिक पीरियड. ओके, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो जिस पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, उस पेंटिंग में तो एक बाइसन है ना, और इसी तरह के जो अदर पेंटिंग्स मिले हैं केव से, उसमें हम एनिमल्स ही ज़्यादातर जैसे वाइल्ड हॉर्सेस हैं, देन राइनोसोरस है, रेनडियर है, बियर है, ये सभी वाइल्ड एनिमल्स हमें नज़र आते हैं इन केव पेंटिंग्स में. और इनकी जो कलरिंग की गई है बहुत ही ब्राइट कलर्स से कलरिंग की गई है. और ये कलर कैसे बने हैं, ये दीज कलर्स आर मेड नेचुरली. जैसे जो मिनरल्स होते हैं, है ना, मिनरल्स से कलर को एक्सट्रैक्ट किया गया है. जैसे आयरन ओर से, चारकोल से कलर बनाए गए. इसलिए ये कलर अभी तक, मतलब इतने 10,000 साल 20,000 साल पहले की पेंटिंग्स हैं, लेकिन उनके कलर अभी भी फेड नहीं हुए हैं. क्यों नहीं फेड हुए हैं? इसीलिए क्योंकि वो मिनरल्स से बने हुए हैं. अगर जैसे हम आजकल जो कैमलिन की आती है, आर्टिफिशियल जो कलर्स होती है, अगर उससे हम कलर करेंगे तो थोड़े दिनों बाद उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं रह जाएगी. लेकिन ये सोचिए कि 20,000 साल पहले की बनी हुई पेंटिंग्स है, लेकिन आज भी ये हमें काफ़ी ब्राइट नज़र आ रही है, क्योंकि जो कलर यूज़ किया गया है वो नेचुरल कलर्स है, मिनरल से बने हुए कलर्स हैं. ठीक है, अब एक बात ये नहीं समझ आती है कि ये पेंटिंग्स क्यों बनाए गए थे. पेंटिंग्स को बनाने के पीछे क्या रीज़न था? कोई खास सेरेमनी, कोई खास ओकेजन पर बनते थे, या हमेशा ही ये बनते थे, है ना, किसी स्पेशल रिचुअल के लिए बनाए जाते थे, या फिर सपोज करो कि अगर मान लो हंटर्स जो हैं वो हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो उसके पहले क्या इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था, इस बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं है. आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि इन पेंटिंग्स को बनाने के पीछे रीजन क्या था, क्या कारण था. ठीक है, अब इसी तरह से एक और इस वाले चैप्टर में आपको 2 एल्सवेयर मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको बताया है ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, ये एक्चुअल में अगर हम पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें ये इस चैप्टर के जो पूरे कंटेंट है वो 2 चैप्टर में है. ठीक है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, उन दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके सिंगल चैप्टर बना दिया गया है. ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 एल्सवेयर दिया हुआ है. ठीक है, जिसमें अभी दूसरे वाले में किसके बारे में दिया है, नियोलिथिक साइट. इसके पहले जो हमने फ्रांस की केव पेंटिंग देखी वो दैट बिलोंग टू पैलियोलिथिक पीरियड. अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है नियोलिथिक साइट. नियोलिथिक साइट. ठीक है, अब हम देखते हैं अपने एटलस में आपको जो जगह खोजनी है वो है टर्की. ठीक है, अब ये जो टर्की है, ये एक्चुअली दिस टर्की बिलोंग टू एशिया. एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे टर्की है. ठीक है, आपको टर्की ढूंढना है, अपने एटलस में आप ढूंढिए. और ये एक बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट है. टर्की जो है, इट्स अ वेरी वेरी फेमस नियोलिथिक साइट. सो
टर्की में जो एक नियोलिथिक साइट है दैट इज कैटल ह्यूक, ये बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट है, ठीक है। द नेम ऑफ द साइट इज कैटल ह्यूक, ओके। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बहुत दूर दूर से चीज़ों को लाया जाता था, सामान, रॉ मटेरियल्स, और उनसे बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे सीरिया से फ्लिंट आता था, रेड सी से कॉरीज आते थे, मेडिटेरेनियन सी से शेल्स आते थे, और उसको सेटलमेंट्स में यूज़ किया जाता था। इन चीज़ों को, जो फ्लिंट है, जो कॉरी है, जो सेल्स है, वो सारे घर बनाने में उनको यूज़ किया जाता था। जबकि अगर हम देखें तो उस समय कोई कार्ड्स भी नहीं होता था। नियोलिथिक साइट की बात कर रहे हैं हम, यानी कि आज से 10,000 ईयर्स अगो। उस समय इंसान को व्हील के बारे में भी नहीं पता था, कार्ड्स भी नहीं होते थे, और ज़्यादातर जो चीज़ें, जो भी सामान का आना जाना हो रहा है, वो एनिमल्स के बैक पर चीज़ों को लाया जाता था, या फिर लोग लोड उठाकर लाते थे। तो इस तरह से मतलब उस जमाने में भी हम देख रहे हैं, जबकि कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीन्स नहीं था, पीपल वर नॉट नोइंग अबाउट द व्हील, स्टिल इन दैट पीरियड इतने दूर दूर से चीज़ें को ला करके, चीज़ों को ला करके सामान बनाया जाता था। यहाँ की हम बात कर रहे हैं टर्की में कैटल ह्यूक, जो कि नियोलिथिक साइट था। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, है ना। ये चैप्टर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आपके चैप्टर के एंड में, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है ना। कंप्लीट द सेंटेंसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इसमें हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? हंटर गैदरर्स chose to live in caves and rock shelter because. Why do hunter gatherers chose to live in caves and rock shelter? ये हमने देखा था कि caves and rock shelter में इसलिए रहते थे ताकि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उनसे वो बच सके, लाइक एक्सेसिव रेन है, देन हीट बहुत ज़्यादा है, कोल्ड बहुत ज़्यादा है, और एनिमल्स से भी वो उसको बचाते थे। तो इसमें हमें यही लिखना है, ठीक है। सो हंटर गैदरर्स चूज टू, यस, हंटर्स गैदरर्स chose to live in caves and rock shelter because they provided shelter from the rain, heat and wind. Okay, this is your answer. Okay, you copy down these answers in your notebook because it will be better if you do the work simultaneously. एक साथ आप
पढ़ते पढ़ते अगर आंसर्स भी लिख लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाली सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो ये कहता है, ग्रासलैंड्स डेवलप अराउंड grasslands developed around 12,000 years ago। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, कितने सालों पहले, 12,000 years ago। And now we will see the next question. The next question is, why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? We have seen that the people who grow crops have to stay in the same place because they needed to give water to the plants, then for the purpose of weeding and for the purpose of protecting the plants they needed to stay at the same place for a long time, है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग लिखेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे। Question is, why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time। है ना, क्यों उन्हें एक जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ता था। सो वी विल राइट दैट पीपल हु ग्रो क्रॉप्स, आंसर have to stay in the same place for a long time because they have to because of the following reasons। हम लोग ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, कि क्यों उन्हें एक ही जगह पे रहना पड़ता था, उसके पीछे क्या कारण थे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द फर्स्ट इज टू लुक आफ्टर द प्लांट्स। ठीक है, पॉइंट्स दे करके आप लिखेंगे, टू लुक
after the plants. Second points देंगे to water the plants, third point देंगे for weeding. I told you what is weeding. weeding क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है. for weeding. And the fourth is to drive away animals and birds. Fourth is to drive away animals and birds. So these are the reasons why they needed to stay in the same place for a long time. Okay, this is your answer. You copy it down.